साथ हैं राहुल जी, राहुल देव जी, और उनको कोई कौन नहीं जानता, तो और साथ में हमारे वाइस चांसलर पद्मश्री प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा। तो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, ताकि एक वो नोट सेट करने के लिए जो प्रॉपर फॉर्मल मोड में मैं पढ़ना चाहूँगा दोनों का इंट्रोडक्शन, सो दैट वी कैन गो अहेड। हमारी लैंग्वेज हिंदी है आज के उसकी, और पूरे इस इवेंट की अमित जी हमें भी आगे और अच्छे से वो करेंगे। तो बट फॉर्मल करने के लिए आई विल रीड थ्रू द फॉर्मल इंट्रोडक्शन. So Shri Rahul Dev Ji is ex-honorary advisor speakers research initiative, Parliament of India. He is an eminent journalist and language activist. He is a bilingual journalist with brilliant experience of over 4 decades in both print and TV and in English and Hindi media channels. He is managing trustee of Samayak Foundation since 1990. He has contributed to various prominent media houses in leading roles like editor of Hindi dailies, Jansatta, and Samaj in television. He has also headed news channels in leadership roles like head of Z News, editor-in-chief of CNEB News Channel, and primetime anchor of DD News. He also works on developmental, public health, and media issues with Nation and multilateral organizations. He has also worked with NACO, UNDP, UNICEF, UNAIDS, among others. His valuable contribution in the field of mass media in the domains like public health, media training and ethics, development, preservation and promotion of Indian languages has been commendable and inspirational. हमारे साथ दूसरी महान हस्ती हैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा. ही इज पद्मश्री अवार्डी, इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट. Currently, he is Vice Chancellor of Shri Mata Vaishno Devi University and formerly of Nalanda Open University. Previously, he was the head of the Department of Zoology at Patna University and is a pioneer researcher and wildlife conservationist. Famous for his efforts for the conservation of gangetic dolphins, he is popularly known as Dolphin Man of India. He has spearheaded several projects during his career and has collaboration both within India and abroad, and has published several important papers in national and international journals of repute. His scientific research and relentless conservation campaign for the last 4 decades have been crucial to the efforts of saving the Ganga river dolphin from extinction. In response to the awareness of the urgency of protection, the Ganga river dolphin raised by Professor Sinha, the Government of India designated this dolphin as the national aquatic animal of India in 2009. He is the recipient of Order of the Golden Ark by His Royal Highness Prince Bernhard of the Netherlands, Golden Jubilee Award of National Academy of Sciences India, 4th highest civilian award Padma Shri by the President of India. First Arsh Tak by Outlook Manzi. So like many awards are to his credentials. So I welcome both the dignitaries, and Amit ji, we start formally the inaugural function. Over to you. तो बिल्कुल धन्यवाद सावरकर सर. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी स्टार्टअप बड़ी को कि हम लोग इनके साथ मिलके एक कार्यक्रम कर पाए 4 दिन का, और जिसपे जो मेन लैंग्वेज रहे हिंदी रहे. क्योंकि जब भी हमारी बात होती है सावरकर से या किसी भी टियर 2 सिटीज के स्टार्टअप से, तो हमने यही रियलाइज किया कि जो भी वो लोग बात करते हैं अंग्रेजी माध्यम में, उसमें कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी होती है वो हमारी बहुत सारी बोरो हो रखी है डिफरेंट कंट्री से, अलग अलग यूएस से, डिफरेंट जगह से. तो उनको ये बात समझने में दिक्कत आती है कि बिजनेस जो होता है उसको स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट किया जाए. तो मुझे लगता है कि ये इंडिया में पहला इस तरह का वर्कशॉप हो रहा है 4 दिन का, जिसके अंदर हम 12 सेशन कर रहे हैं टोटल, आधे घंटे के. और 6 घंटे के इस प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी जैसी सरल भाषा में, जो काफी जनता को समझ में आती है और स्टूडेंट्स को बहुत आराम से समझ में आती है, आसानी से उनको, क्योंकि डेली बोलचाल की भाषा है, इस भाषा के अंदर हम समझाने की कोशिश करें कि क्या होता है. और हमने जो टॉपिक रखे हैं वो बहुत हाई लेवल के नहीं रखे, हमने बड़ा बेसिक रखा है कि अगर किसी को स्टार्टअप शुरू करनी होती है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम उसको बहुत आगे तक का पढ़ा रहे हैं, बट हम बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर हम केवल उसको समझने की कोशिश करवा रहे हैं कि अगर आपको कोई स्टार्टअप खोलनी है तो आप कैसे शुरू करें. तो अगर उसके आगे भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा
तो हम कोशिश करेंगे एक और वर्कशॉप करने की जिसके अंदर हम एडवांस लेवल का डिस्कशन करें, और फिर और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम उससे सुपर एडवांस लेवल की डिस्कशन करेंगे। तो जो मैं कंटेक्स्ट सेट करना चाहता हूँ इसके रेफरेंस में, तो लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश रहेगी क्योंकि प्योर हिंदी भी हमारे को कम समझ में आती है। तो हम कोशिश करेंगे जिसमें सबको समझ में आए, और बेसिक रहेगा इसका। 4 दिन में हमारा पर्पज ये रहेगा कि हम बेसिक चीजें कवर कर सके, बहुत ज्यादा वो नहीं कर सके। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगेन मैं धन्यवाद करता हूँ श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का, ये अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए एक साथ में मिलके इस वर्कशॉप को करने का। और राहुल देव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो कुछ शब्द कहें। और मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो नवोद्यम वर्ड था ना, ये मुझे राहुल देव सर ने दिया था। तो किसी टाइम पर इन्होंने मुझे कहा था कि स्टार्टअप की हिंदी क्या हो सकती है, तो मैंने कहा सर हिंदी तो कोई अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये वर्ड तो यूएस से आया है, तो स्टार्टअप की तो कोई हिंदी कहीं पर भी अवेलेबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो मैं कुछ ढूंढता हूँ, इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। और राहुल देव सर ने कहा कि नवोद्यम वर्ड है जो यूज होना चाहिए हिंदी के लिए। इसीलिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया राहुल सर को कि सर आपसे बिना पूछे मैंने आपका नाम डाल दिया है अपने ब्रोशर के अंदर, और आपने इसको इनोग्रेट करना है। अगर आप इनोग्रेट नहीं करोगे तो इस वर्कशॉप का कोई पर्पज नहीं रहेगा, क्योंकि नाम आपने दिया हुआ है। तो सर ने हमारी उसको एक्सेप्ट किया, और सर ने कहा जब तुमने इसको आगे किया है तो मैं जरूर आऊंगा इसको इनोग्रेट करने। तो धन्यवाद राहुल सर, आपका समय देने के लिए और हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए इस प्रोग्राम के लिए। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आगे इसके ऊपर कुछ चीजें कहें स्टार्टअप के बारे में, और जो भी बहुत हमारे धन्यवाद बच्चे अमित। हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। आप अगर मुझे इजाज़त दें बहुत धन्यवाद के साथ, तो मैं अपने लैपटॉप से मोबाइल पे आ जाता हूं, क्योंकि उसमें शायद मुझे ज़्यादा साफ सुनाई पड़ेगा। ये ईयरफोन्स ठीक नहीं है, तो बस मुझे आधा मिनट दीजिएगा। मुझे लगता है सर आप इसी पर कंटिन्यू करें, हमें आपकी आवाज बहुत अच्छी सुनाई देती नहीं, है। और लेकिन मुझे आप आपकी आवाज़ और अच्छा बेहतर आए इसके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वो हम वेट करें। ये कुछ ईयरफोन्स में गड़बड़ है, बस ज्वाइन कर लिया मैंने। अब मैं साफ दिख रहा हूँ? बिल्कुल सर, हमें आप दिखाई दे रहे हैं अच्छी तरह। और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ऐसे ही करेंगे। और मैं तो मुझे लग रहा है सर कि आपने सुन लिया होगा कि मैंने बताया कि नवोद्यम नाम आपने दिया था, और आपने हमारी रिक्वेस्ट को भी स्वीकार किया। तो उसके लिए फिर से धन्यवाद कर देता हूँ। बाय चांस मेरी आवाज कम पहुंच पाई हो आप तक कुछ टाइम। राहुल जी आपका आवाज नहीं आ रहा, आप अनम्यूट कीजिएगा इससे। जी जी, अब ठीक है सर। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। मैं अमित को धन्यवाद देते हुए ये कह रहा था कि ये नाम मुझे मैंने दिया ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये नाम मुझे मिला। और किसने दिया, कुछ ऊपर से आया, कैसे आया, लेकिन ये इस पर इसलिए मैं कोई कॉपीराइट का वो नहीं कर सकता। और हम लोग, मैं मानता हूँ कि हमें जो जो हम समझते हैं कि हम करते हैं, या ये हमारा मौलिक है, वो दरअसल वो कितना मौलिक होता है और कितना हमें मिलता है किसी कृपा से, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि अमित और अमित के सभी मित्रों ने इस शब्द को अपनाया। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब इसकी एक पूरी श्रृंखला स्टार्टअप बडी ने और अमित और की पूरी टीम ने शुरू की है। मैं इसके लिए आपको साधुवाद भी देता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अब आप सब लोग वरिष्ठ लोग हैं और सब अनुभवी लोग हैं, यहाँ पर उद्यमी हैं। मैं स्वयं एक उद्यमी नहीं हूँ। उद्यम की मैंने कोशिश की थी कई दशक पहले, लेकिन मैं समझ में बहुत जल्दी आ गया कि व्यापार बुद्धि मुझ में नहीं है। मेरा मेरा काम पैसा कमाना नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझना और समझाना है शायद। और एक पत्रकार के रूप में भी हम यही करते हैं। हालांकि पत्रकार भी कुछ बड़े अच्छे उद्यमी साबित हुए हैं, लेकिन मेरी वो प्रतिभा नहीं। उसके बावजूद जो जैसे अमित ने कहा और हम सब लोग महसूस करते हैं कि मेरी बहुत लंबे समय से मान्यता रही है कि
भारत को अगर अपनी सारी प्रतिभा का, और उसमें जो उसकी प्रतिभा में संभावनाएं हैं, उसके पास जिस तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं, उसके पास जिस तरह की युवा शक्ति है, उसके पास जिस तरह की मिट्टी है, पानी है, नदियां हैं, भूमि है, उर्वरा धरती है, और प्राकृतिक और दूसरी तरह के सारे संसाधन हैं, उनको देखते हुए भारत का जो संपूर्ण विकास तभी होगा जब लगभग 100% भारतीय अपनी सारी जो भी प्रतिभा उनको प्रकृति ने दी है या ईश्वर ने दी है, उनका वो पूरा उपयोग कर सकेंगे और उनका पूरा विकास कर सकेंगे। दुर्भाग्य से हमारे 72 साल की आज़ादी में एक अजीब चीज हो गई जो दुनिया के हमारे तरह के किसी भी समकक्ष दूसरे देश में हमें नहीं मिलती, कि सारी एक सीमा के बाद सारी प्रगति, सारा आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, ज्ञान का विकास, विज्ञान का विकास, उच्च शिक्षा, वो सब एक 10% लोगों के क्लब में कैद होकर रह गई है। और इस पर मेरी एक आध बार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी बात हुई, वित्त मंत्री चिदम्बरम, उनके इस तरह के लोगों से भी बात हुई। वो सब ये स्वीकार करते थे कि जो हमारा आर्थिक विमर्श है, जो हमारा व्यापार विमर्श भी है, विज्ञान विमर्श है, ये सारी चीजों ज्ञान है, ये सारी भाषाओं में लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन वो आज तक हम कर नहीं पाए हैं। अब एक ये जो नई क्रांति शुरू हुई अभी बहुत ये अपने यौवन में ही है, यौवन में भी क्या कहूँगा, भारत में तो स्टार्टअप जिसे हम क्रांति कहते हैं, संस्कृति है, ये अपने शैशव में है, लेकिन उस शैशव में ही उसने कई बड़े काम कर लिए हैं, एक बहुत अहम जगह दुनिया में अपनी बना ली है। तो ये भी जो कुछ साल से, मैं समझता हूँ कि 5-6 साल, 10 साल भी इसको हम नहीं कह सकते कि उसकी उम्र हुई होगी, लेकिन उसने एक जो परिपक्वता दिखाई है, वो इस रूप में, एक रूप में तो बहुत सराहनीय है, लेकिन दूसरे रूप में बहुत हम पाते हैं, कम से कम मैं पाता हूं कि वो सीमित भी है, कि क्योंकि वो देश के कुछ हिस्सों में और कुछ वर्गों तक ही सीमित है। यानी अगर बेंगलोर से शुरू हुई, हम ये कह सकते हैं कि सारी क्रांति की शुरुआत बेंगलोर से हुई थी, और एक समय था कुछ 1-2 साल पहले ही जब लगभग 60 से 70% स्टार्टअप हमारे नवोद्यम वो बेंगलोर में थे। फिर धीरे धीरे उनसे थोड़ा वो दूसरे प्रदेशों, दूसरे शहरों में गए, तो आज हम दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, किसी हद तक कलकत्ता, शायद चंडीगढ़ में भी कुछ शुरुआत होगी ऐसे हम पाते हैं कि और मैं जब दिल्ली कह रहा हूँ तो दिल्ली में एनसीआर, यानी मैं जहाँ रहता हूँ, गुड़गांव और नोएडा, वो दोनों शामिल हैं। अभी भी ये मुश्किल से 7-8 शहरों में ये पूरी दुनिया, जो हमारी नवोद्यमों की दुनिया है, वो सीमित है, लेकिन उसके भीतर ही वो उसने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं कल्पना करता हूं कि अगर किसी दिन जब ये 7 की जगह 70 शहर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या क्या हो सकता है। और मुझे लगता है आप सब सहमत होंगे कि जब ये 770 होंगे, उसके बाद 100 होंगे या 150 या 200, जो हमारे जिन्हें हम टियर 2 और 3 ये शहर कहते हैं, जब वहां तक ये सारी ये संस्कृति, ये ऊर्जा और ये दरवाजे खुलकर वहां तक पहुंच जाएंगे, ये जो दरवाजे, जो राहें खुल रही हैं, आप सब लोगों ने और जो इसमें पायनियर रहे हैं, उन्होंने जो राहें खोली हैं, जो खिड़कियां खोली हैं, और आत्मविश्वास दिया है इस देश के युवा को, जिसके पास विचार है, जिसके पास थोड़ी समझ है, विज्ञान की भी समझ है, थोड़ा विज्ञान है, तकनीक है, और पूंजी नहीं हो उसके पास तो भी वो बहुत बड़ा बन सकता है, वो अपने सपनों को साकार कर सकता है। ये जो आत्मविश्वास है, ये जब हमारे देश के सारे हिस्सों में रहने वाले सभी युवाओं को, प्रतिभाशाली युवाओं को, सपना देखने वाले युवाओं को मिल जाएगा, और उनको उसके अनुरूप जिसे हम माहौल कहते हैं, एक पौधे को जैसे बड़ा होने के लिए खाद, मिट्टी, पानी जैसी आबो हवा चाहिए, वो सब उसको जब मिलने लगेगी, इन प्रतिभाओं को मिलने लगेगी, तो भारत सचमुच एक चमत्कार करने वाली वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। और दुनिया आज हमारी प्रतिभा का लोहा मानती है, हम भी समझते हैं, और हमारे देश में भी एक नया आत्मविश्वास आया है, और उस आत्मविश्वास को जगाने, बढ़ाने में इस नवोद्यमियों ने हमारे बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो जब ये जागरूकता और ये आत्मविश्वास और ये चेतना
अंग्रेजी से बाहर निकल के, अंग्रेजी की सीमित छोटी 10-12% की दुनिया से बाहर निकलकर 60, 70, 80, 90% भारतीयों तक पहुंचेगी, और उसके अनुरूप उनको एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, जब राज्यों की नीतियां भी उनको बढ़ाने वाली मिलेंगी, और सचमुच उनके मदद करने के लिए, चाहे वो वेंचर कैपिटल हो या सीड फंडिंग हो, जिसे हम हैंड होल्डिंग कहने, यानी सहारा है, ये सारी चीजें जो उपलब्ध होने लगेंगी धीरे धीरे, तो सचमुच आर्थिक क्रांति हो जाएगी इस देश में, और इस देश के माध्यम से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े हिस्से में दुनिया के। उसकी शुरुआत और जैसी होनी चाहिए, मैं इसके लिए स्टार्टअप बड़ी को और अमित की सारी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उसकी शुरुआत आपने कर दी है। इसी तरह दिल्ली से और मुंबई से और अहमदाबाद और बेंगलोर से बाहर निकलकर इस भाषा भारत, मैं इसको भाषा भारत कहता हूँ, यानी जो अंग्रेजी भारत, जो इंडिया नहीं है, भारत है, जो भाषाओं में जीता है, तो आप वहां तक जाने लगे हैं। आज जम्मू एक तरह से ठीक है, आभासी तरीके से ही सही, लेकिन आज आप जम्मू पहुंचे हैं। आपने और भी आपके उड़ीसा के कार्यक्रम में भी मैं शामिल हुआ था, मुझे सौभाग्य मिला था, और वहां पर हमने देखा कि उड़िया के कई बहुत ही अच्छे नवोद्यमी हमें मिले थे, और वहाँ उनके जो सपने हैं, उनकी क्षमताओं से भी हमारा परिचय हुआ। तो ये जो क्षमताएं, प्रतिभाएं देश के हर कोने में हैं, जन्म ले रही हैं और लेती रहेंगी, इनको धीरे धीरे इस वृत्त को, यानी सर्कल को बड़ा करते करते जब हम इनको शामिल कर लेंगे, तो बहुत बड़ा काम होगा। और मैं समझता हूँ कि स्टार्टअप बड़ी की इस भूमिका को इतिहास याद करेगा। अंग्रेजी के लिए तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकारें भी उनको बहुत सहारा दे रही हैं, लेकिन ये जो देशज प्रतिभा है हमारी, जो अपनी भाषाओं में जीती, सपने देखती और काम करती है, जो जुगाड़ की उस्ताद है, तो उस जुगाड़ की वाली प्रतिभा को हम एक औपचारिक मंच देकर, सम्मान देकर, अवसर देकर और प्रशिक्षण देकर, हम जब उसको नवाचार में बदल देंगे, जुगाड़ से नवाचार तक, यानी जुगाड़ के लिए तो कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, अंग्रेजी शब्दकोश ने भी, ऑक्सफोर्ड ने भी उसको स्वीकार कर लिया है। तो जब हम जुगाड़ से हाईटेक इनोवेशन तक पहुंचेंगे, हाई एंड इनोवेशन तक पहुंचेंगे, और फिर हम और बड़े उद्योगों की ओर जाएंगे, तो भारत की संपूर्ण प्रतिभा का साक्षात्कार भारत को भी होगा और दुनिया को भी होगा। मैं समझता हूँ कि वक्तव्य के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, और मैं बहुत उत्सुक हूँ आप सबको सुनने के लिए, सिन्हा साहब को सुनने के लिए। सिन्हा साहब यहाँ पर हैं, और उनसे अभी जो अनौपचारिक हमारी बातचीत हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि उनसे बेहतर अध्यक्ष और उनसे बेहतर मार्गदर्शक इस समय हमारे पास कम से कम उस देश के हिस्से में नहीं होगा, और ये हमारा सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ हैं और उनको सुनने का मौका मिलेगा। वो स्वयं मैं कहूँगा कि ज्ञान के उद्यमी हैं। बिहार जिसके बारे में, जिसकी छवि एक बहुत प्रगतिशील, बहुत आगे बढ़े हुए समृद्ध प्रदेश की नहीं है, देश में नकारात्मक छवि बनी है पिछले कई दशकों में, बिहार में सिन्हा साहब जैसे लोग हैं जो 40-45 साल वहाँ रहकर जिन्होंने इतना काम किया है, इतने ज्ञान का निर्माण किया है, ऐसा ज्ञान जो पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, काम का है, और दुनिया के लिए भी। अगर वो उनके धूल की बात करें, धूल पर उन्होंने जो शोध की है, पानी पर, डॉल्फिन पर, गंगा पर, नदियों पर, प्रदूषण के तमाम आयामों पर। तो जैसे अब जब वो बात कर रहे थे चना साहब, आप अपने धूल, टॉक्सिक डस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे तुरंत विचार ये आया कि पूरी तरह संभव है कि आपके शोध का सहारा लेकर एक उत्पाद बनाया जा सके, जो घरों में, आम घरों में, बच्चों में, जो बच्चे चलते हैं, घुटनों चलते हैं, उनको इस प्रदूषण से बचा सके, उनको इस नुकसान से बचा सके। ऐसे कई उत्पाद यानी प्रोडक्ट बन सकते हैं। वहाँ पे थोड़े से नवाचार की जरूरत है और आपके जैसे मार्गदर्शक की जरूरत है। तो केवल तुरंत मुझे जो विचार आया, मुझे लगा कि मैं यही रख दूं, और जरा इस दृष्टि से भी आप विचार कीजिएगा कि आपकी अपनी शोध, आपने जो ज्ञान निर्माण किया है, उसका कैसे उसको एक उत्पादों में बदला जा सकता है, और कैसे उनका व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है, ताकि वो उपभोक्ताओं के और नागरिकों के काम की चीज बने।
इसी के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद स्टार्टअप बडी को और इस विश्वविद्यालय को कि मुझे आपने अपने से जुड़ने का मौका दिया और कुछ कहने का मौका दिया। धन्यवाद राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो तारीफ करी स्टार्टअप बडी और मेरी, और उसके लिए मुझे लगता है कि ये इनिशियल वो है हमारा, हम काफी कुछ और करेंगे और आपको बार बार मतलब मौका मिलेगा कि हम लोग जितना आपके एक्सपीरियंस का फायदा ले पाएंगे वो हम हर टाइम पर कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बार बार परेशान करता रहूंगा। मैं तो आपका हमेशा के लिए सहायक हुई, असिस्टेंट। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सावरकर सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है ना थोड़ा अपडेट करें कि अभी जम्मू कश्मीर में हमने पिछले 6 महीने में क्या लेटेस्ट अपडेट करे, क्योंकि पूरी दुनिया को ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो लोग अवगत नहीं। और आज ये एक अच्छा मौका है, आपने अभी शीप्रन्योर करके जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई सीरीज स्टार्ट करी है, या 100 J&K स्टार्टअप्स के बारे में वो किया है, तो प्लीज आप 2 मिनट लगा के अगर वो बता पाए सभी दर्शकों को तो बहुत अच्छा। अमित जी, मैं शेयर करूंगा वो, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा पहले वाइस चांसलर साहब से एक फॉर्मल हम उनका वो सुन लें और उसके बाद फिर मैं शेयर करूंगा कि क्या थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की। तो एक फॉर्मल नोट वाइस चांसलर साहब से, सो दैट वी कैन मूव अहेड। सर्वप्रथम मैं राहुल देव जी को नमस्कार करता हूं और साधुवाद भी देता हूं। इन्होंने इतने कम शब्दों में, इतने कम समय में स्टार्टअप्स की इतनी सारी चीजों को एक परिकल्पना या समझ किया है उन्होंने, ये बहुत ही प्रेरक लगता है। आपको सुनना ही बहुत प्रेरक लगता है। आप प्रेरणा के स्रोत हैं। और अमित जी को भी मैं साधुवाद देता हूं कि ये इस रिमोट एरिया का आपने एक राष्ट्रीय मैप पर इसको लाया है, इस चीज के लिए एक स्टार्टअप बडी के रूप में, या इतने सारे लोगों से एक इंटरेक्शन का मौका दिया है आपने, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। श्री राहुल देव जी, मेंटर्स, फैकल्टी, छात्रों और जम्मू और कश्मीर से उद्यमियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे स्टार्टअप बडी के साथ मिलकर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा आयोजित नवोद्यम की पाठशाला J&K के उद्घाटन सत्र में शामिल होने की खुशी भी है और काफी कुछ सीखने का मौका भी मिल रहा है, क्योंकि जब कुछ सुनता हूं तो निश्चित ही वह एक सीखने का बहुत बड़ा अवसर भी मैं पाता हूं। मुझे बताया गया है कि यह कार्यशाला 100 स्टार्टअप JK मिशन के तहत आयोजित एक ऑनलाइन पहल है और 100 स्टार्टअप्स J&K जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में 2021 तक 100 नए अभिनव स्टार्टअप को उभरने और सफल बनाने का SMVDU TBIC का अनूठा और महत्वाकांक्षी उद्देश्य है। मुझे जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि इस कार्यशाला की भाषा प्राथमिक तौर पर हिंदी रखी गई है, ताकि बिना किसी रोक और मुश्किल के हर कोई जो इस कार्यशाला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लाभान्वित होंगे और लाभान्वित होना चाहेंगे। यह सराहनीय और यह सब कदम प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के प्राथमिक उद्देश्यों को दर्शाते हुए जम्मू कश्मीर की एक अच्छी पहल है। मुझे सूचित किया गया है कि कार्यशाला का आयोजन जम्मू और कश्मीर के स्टार्टअप और उद्यमियों को विभिन्न पहलुओं को अच्छी तरह से समझाने और बिजनेस से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जा रहा है। इस कार्यशाला में कंपनी बनाने के कानूनी पहलू, IPR, संरक्षण, बाजार रणनीति, फाइनेंस, अपनी कहानी कहने के महत्व और प्रभावी टर्म शीट सहित बहुत से जरूरी विषयों पर बात की जाएगी।
इन पहलुओं से क्षेत्र के उद्यमियों को यह जानने में मदद मिलेगा कि स्टार्टअप को विकसित होने के लिए कैसे काम करना चाहिए। SMVDU परिवार के प्रमुख के रूप में TBIC और स्टार्टअप बडी को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस प्रयास में सहायता के लिए सभी समर्थकों और हितैषियों को धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि इस कार्यशाला से सभी लोग अच्छी तरह से लाभान्वित होंगे। जहां तक राहुल देव जी का किस तरह से हम लोग अपने शोध कार्यों का जो भी रिजल्ट होता है, फाइंडिंग्स होता है, उसको आम लोगों तक पहुंचाएं, उसका लाभ मिले लोगों को। राहुल जी, मेरा उद्देश्य भी यही रहा है, क्योंकि मैं विज्ञान के साथ साथ समाज से भी जुड़ा रहा हूं और जुड़ना चाहता भी हूं, जुड़ करके ही काम किया हूं, खास करके वैसे समाज से जो बिल्कुल ही कटा हुआ है। क्योंकि जो नदियों के किनारे रहते हैं और नदियों में रहने वाला जो समाज है हमारा मछुआरों का, शायद मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग है। वो उसकी बातें पहुंचती नहीं है लोगों तक। और जैसा आपने कहा, एक धूल की बात, जैसा मैंने उदाहरण के स्वरूप कहा था, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सुझाव आपका मुझे लग रहा है। हमारे देश में औद्योगिकरण उस स्तर का नहीं हुआ है जो बहुत सारे विकसित देशों में है। तो संभावना है कि जैसे जैसे हम औद्योगिकरण की ओर जाएंगे, वैसे वैसे और ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हमारे पर्यावरण में आएंगे और फिर हमारे धूल कण में भी वो शामिल होंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे देश से ही, चूंकि एटमॉस्फेयर की जब बात करते हैं तो इट नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्री, इवन रिवर डजंट नो एनी पॉलिटिकल बाउंड्री, तो जाएगा दूसरे देश में भी। ये बहुत ही जरूरी है कि बेस लाइन डेटा तो हम लोगों ने जनरेट कर दिया है। एक तो इसका लाभ ये होगा कि आगे से भी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगेगा कि हमारा औद्योगिकरण के साथ साथ प्रदूषण कितना बढ़ रहा है या घट रहा है या क्या हो रहा है, और उसका जो प्रभाव है मानव शरीर पर, खास करके शिशुओं के शरीर पर, जैसा मैंने कहा आपसे, एंडोक्राइन डिसरप्टर के रूप में जो काम कर रहा है, तो उसके तरफ और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के, कुछ मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट से मिलकर के इसको एक डेवलप किया जा सकता है कि कोई एक ऐसा साधारण सा सिंपल सा डिवाइस कुछ डेवलप किया जाए जो बच्चों की रक्षा हम कर सकें अर्ली चाइल्डहुड में। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा समाज के लिए। मैं कुछ अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं और मैं ऑर्गेनाइजर्स के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से कुछ बात कर सकूं, कुछ सुन सकूं। और सौभाग्य है कि आज राहुल जी देव जैसे लोगों से भी सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं अमित जी आपके क्वेश्चन का जवाब देते हुए, ताकि हम अपने फॉर्मल सेशन को भी स्टार्ट कर सकें, थोड़ा सा डिलेड है, पर 1 मिनट में मैं बताना चाहूँगा कि अब तक श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है वो DST से सपोर्टेड है। और कुछ पर SMVDU ने इसको सिर्फ SMVDU के छात्रों के लिए ही नहीं करके रखा कि बाहर से कोई स्टूडेंट यहाँ नहीं कर सकता। इस वजह से हम लोग बहुत से आइडियाज को रिसीव करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और साथ में कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े रहें और उनकी हम हेल्प कर सकें कि वो सक्सेसफुल बिजनेस डेवलपमेंट की ओर बढ़े। अमित जी, जैसे आप जानते हैं कि अभी तक हमारे पास यहाँ से 14 के करीब कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी हैं हमारे साथ। उसमें से 5 ऑलरेडी भारत सरकार से रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं। इस बार अराउंड 40 के आसपास नए स्टार्टअप्स जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो इन सब की इसके अलावा रेगुलर हम लोग इवेंट्स करते रहते हैं, जैसे ये हमारा स्टार्टअप बडी के साथ ये इवेंट है, और भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे अपने जो स्टार्टअप्स हैं, यहाँ के लोकल स्टार्टअप्स हैं, वो अपना शेयर कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, आपस में मिलकर सॉल्यूशंस निकाल सकें। तो इस तरह की काफ़ी कोशिश करते रहते हैं। और स्टार्टअप बडी से जुड़ने से हमें नेक्स्ट स्टेप, इसको स्टार्ट तो कर दिया, उसके बाद क्या, वो
एक गैप रहता है जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रहा है हमेशा से, कि शुरू तो है बट आगे क्या, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर्स आने से हमेशा घबराते रहे हैं। बाहर से जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो इतने अच्छे से बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, डर जम्मू कश्मीर में कि कैसे कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे जुड़ने से और काफ़ी लोगों के जुड़ने से, आप जैसे महान लोगों के जुड़ने से वो डर शायद खत्म होगा। वी विल सी इन्वेस्टर्स एट द सेम टाइम। जो हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स हैं वो नया सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे और अच्छा करेंगे। हमने दो नए जो अभी जैसे वाइस चांसलर साहब ने बताया कि 100 स्टार्टअप जी एंड के अभी एक मिशन लॉन्च किया है, सर के ज्वाइन करने के बाद हमने वो किया कि हम इस एक साल में 100 नए स्टार्टअप्स को लेके आएंगे। यहाँ पर बच्चों में टैलेंट बहुत है, आइडियाज की कमी नहीं है, पर हैंड होल्डिंग की बहुत सख्त जरूरत है। तो हमारी कोशिश है कि हम वो कमी पूरी कर सकें। इसी के साथ साथ एक और जो शीप्रनर, जो वुमेन प्रेनर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए हम लोग ने एक और लॉन्च किया है शीप्रनर। और नेक्स्ट 3 महीने में हम फीमेल्स अगर उनके पास अच्छे आइडिया हैं तो हम उनको रिसीव करेंगे और उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कोशिश है, पहल है, और आप सबकी सपोर्ट, यूनिवर्सिटी की सपोर्ट से टीबीआईसी धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छे से एग्रेसिवली मैं बोलूँगा हम इसको पिच कर पा रहे हैं। हमने अभी हमारे साथ जेके स्टार्टअप एसोसिएशन, अभी नई यहाँ के स्टार्टअप्स ने आपस में मिलके ही एक नई एसोसिएशन फॉर्म किया है, जो एक खुद में नया स्टार्टअप मतलब नया शुरुआत है। पर्पस है इकोसिस्टम फॉर अस बाय अस। तो धीरे धीरे ये सब आई थिंक हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन से ये आई थिंक जल्दी ही हम जम्मू कश्मीर को एक स्टार्टअप उस पर लेके आ जाएंगे। आई थिंक इसके साथ अमित जी आपको और मे बी अब वाइंड अप करते हैं ताकि फॉर्मल स्टार्ट किया जा सके जी। बिल्कुल, मैं ये वो करते हुए एक तो वही राहुल देव सर को फिर से अप्रेज करना चाहूंगा कि हम लोग देखिए 7 स्टार्टअप से शुरू हुए हैं अभी, और सर ने मिशन लिया है कि 100 पर पहुंचना है, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के आशीर्वाद से वो मिशन काफी जल्दी पूरा हो जाएगा। हमें 2021 तक की शायद ज्यादा वेट नहीं करनी पड़े। राहुल सर, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो जो अभी कुछ आपके मन में शंका हो तो प्लीज आप पूछिए, अदरवाइज उसके बाद हम शुरू करते हैं। नहीं, शंका तो कोई है नहीं, मैं केवल जानना चाहता हूँ, और अभी बहुत अच्छी जानकारी मिल ही गई हमें जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में। तो उसमें मैं समझता हूँ कि उसके जो दूसरे पहलू हैं उन पर अभी आगे बात होगी, तो मैं सुनना चाहूँगा, मैं रहूँगा। और इस सत्र के लिए बहुत धन्यवाद। सिन्हा साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और कुछ नए सूत्र तो मैं समझता हूँ कि उनकी बातचीत से ही निकल आए हैं उद्यमियों के लिए। बिल्कुल सर। तो सावरकर सर, विवेक भैया सर को बुलाते हैं स्क्रीन पर ताकि वो शुरू कर सके अपना सेशन। मैं अमित जी, मैं सर को फॉर्मली अपने वाइस चांसलर साहब को उनकी कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं तो मैं उनको फ्री करना चाहूँगा। मैं थोड़ी देर के लिए वो करता हूँ ऑफ मोड में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं विवेक, जो मेरे कुलीग हैं, मिस्टर विवेक दहिया, डायरेक्टर ऑफ स्टार्टअप बडी एंड बोडी वेंचर, मैं उनको चाहूंगा कि विवेक सर अगर आप अनम्यूट करके शुरू कर सके सेशन तो शुरू करते हैं। मिस्टर विवेक, आप कर पा रहे हैं unmute? हाँ अमित, मैं आ गया हूँ। एक्चुअली मेरा लॉग आउट हो गया था तो मैं वापस ओके, आ गया हूँ, सॉरी। नहीं, हमने वैसे भी सबको म्यूट किया हुआ था ना, तो मुझे ये था कि हम आपको अनम्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं। ठीक है, तो अब आपके लिए है डाइस, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप खुद ही इंट्रोडक्शन देके अपना सेशन। हाँ जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी यूनिवर्सिटी का, शर्मा जी का, और ऑफ कोर्स अमित, मेरे
कलीग, राइट, इन्होंने किया। एंड राहुल सर, आपका साथ हमेशा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिन्हा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं एक इंजीनियर हूं, एक एडवोकेट हूं और एक स्ट्रेटेजिस्ट हूं, एक इनोवेटर भी हूं। हम लोग बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ एज अ मेंटोर, एज अ टीम काम कर रहे हैं। उनको कोशिश कर रहे हैं कि एक लॉजिकल बिजनेस बना के उनको हेल्प की जाए कि वो आगे अपना बिजनेस बढ़ा सकें। तो इस दौरान जब भी हम बात कर रहे हैं अपने जितने भी स्टार्टअप से, तो हमें अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज हर स्टार्टअप का अपना एक अलग अलग ही पाथ होगा, एक वे होगी। बिकॉज आज की डेट में हम क्या करते हैं, जब भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, क्या किसी भी हम इसमें स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल किसी भी फील्ड में हम स्टार्ट करें, तो हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी अच्छे बड़े बिजनेसेस हैं जो चल चुके हैं, हम उनको रखते हैं, लेकिन हम उसके पीछे की चीज नहीं देखते हैं कि उन्होंने साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, उन्होंने क्या चीजें अपनी करी हैं। आई होप आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। अमित, आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन। यस विवेक। हाँ, तो इसमें अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक ये एक पैशन है, मतलब ये एक चॉइस नहीं है कि चलो हम एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। अगर आपने सोच लिया है तो आपको इसको फोकस करना ही पड़ेगा, इसके आगे आपको इसमें काम करना ही पड़ेगा। कई बार सोचते हैं कि लेट्स डू, हम एक एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, थोड़े दिन काम करेंगे, उसके बाद तो फिर बाकी लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं। आज के डेट में आपने देखा है रतन टाटा जी भी आज भी काम कर रहे हैं। बात ये, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, वो जील होनी चाहिए, सबसे पहली बात एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और आप ग्रोथ कैसे करेंगे उसके बारे में ये मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा, और वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम रोज स्टार्टअप से बात करके उनके बारे में जानते हैं और काम करते हैं। तो मैं स्लाइड शो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार स्लाइड शो में हैंग हो जाते हैं लैपटॉप और गूगल मीट, तो मैं स्लाइड पे ही कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट हमें जानना है, अगर हम आप जितने भी हम स्टार्टअप्स यहाँ पर हमें सुन रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं है। आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप शॉर्ट रास्ता लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान देगा। इसमें मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ। एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी है थी, अब वो किसी और उसमें है। वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, वो बहुत ही टीयर 4 सिटी से लेकर टीयर 1 तक बने। 2012 में वो बिगेस्ट सेलर थे मोबाइल फोन्स के। आज की डेट में उनके फोन्स नहीं आते, लाइक मैं माइक्रोमैक्स की बात कर रहा हूँ। वो इसलिए नहीं आते हैं कि वो अनजाने में वो लोग अपने मोबाइल बेच रहे थे और पेटेंट इन्फ्रिंज कर रहे थे एरिक्सन कंपनी के। 2012 में उनको दिल्ली हाई कोर्ट में सू किया गया। आफ्टर एक लंबी लीगल बैटल के बाद उनको वो अपना मोबाइल वाला बिजनेस बंद करना पड़ा, क्योंकि वो उनके उस प्राइस पॉइंट पे नहीं आ रहे थे। तो शॉर्टकट मत लीजिए, जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो सारी चीजें अच्छे से जांच के परख के कीजिए, और कोई भी बहाना मत बनाइए। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलता है, लेकिन रास्ता निकालने का मतलब ही नहीं कि हम शॉर्टकट लें। मैं ये सारी चीजें एंटरप्रेन्योरशिप पे लेवल पे बोल रहा हूँ, और ये चीजें हमारे क्लियर होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टीम। आज हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं, राइट, जैसे मैं और अमित एक साथ काम कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग एक टीम है। अकेला बंदा नहीं कर सकता, आपको टीम चाहिए। तो जब भी आप सोचे कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो अपने जैसे लाइक माइंडेड, जिनसे आपके सुझाव और चीजें मिलती हैं, वेवलेंथ मिलती है, आप उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ काम करना शुरू करें, क्योंकि टीम का होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें इनिशियली कुछ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। उसके बाद अब सफलता कैसे मिले, ये पूरा मतलब मैंने इन चीजों को डाला है इस प्रेजेंटेशन में, और मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, बट ये मेरा अनुभव है। तो आप लोग भी इसको जान सकते हैं कि सफलता हमें कैसे मिले। हम एक एंटरप्रेन्योर हम बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब सबसे बड़ी चीज होती है एजाइल, बुद्धता। मीन्स आप कैसे अपने आप को चेंज करें, राइट। जैसे ही आपके साथ कुछ और बिजनेस है, आपका वो नहीं चल रहा है, तो आप उसको किस और तरीके से चलाएं कि आपका बिजनेस चलने लग जाए।
जैसे कि अभी एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है, अमित स्टार्टअप बड़ी, उनमें इन्वेस्टर, हम लोग इन्वेस्टर भी हैं, पी सेफ करके है। वो पहले हाइजीन प्रोडक्ट बेचते थे। अब उन्होंने जैसे ही देखा कि सिचुएशन अलग आ गई है, तो वो लोग रहो सेफ, उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया जिसमें कि वो सैनिटाइजर्स और सेफ्टी चीजें ये बेच रहे हैं। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो इसका मतलब एजाइलिस बुद्धता का मतलब होता है कि आप जाने सिचुएशन को, जाने और उसके तहत अपने आप को चेंज करें। और रणनीति, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रणनीति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, हम छोटे से छोटा एग्जाम भी लेते हैं तो हम पहले प्लान करते हैं, हम सिलेबस में ये चैप्टर करेंगे और ये करेंगे। इसी तरीके से आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक रणनीति बनानी है कि मैं अपने 3 महीने में ये काम करूंगा, और बिल्कुल फोकस होके आप उसमें ही काम करेंगे, आप कुछ और काम नहीं कर रहे हैं, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और आपको उस टाइम टेबल पे टाइम को वैल्यू करना ही है एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर आप टाइम को वैल्यू नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है सफलता पाना। उसके बाद आता है समझ, अंडरस्टैंडिंग। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? आपको अपने मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपका कस्टमर कौन है? अगर मेरा कस्टमर एक मिडिल क्लास का बंदा है तो मैं उसको उस प्राइस पॉइंट पे वो चीज बेचूंगा, उसको हाई लेवल की चीज नहीं बेच पाऊंगा। तो मुझे समझना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपने कस्टमर को समझना ये तब होता है जब आप खुद ही अपने कस्टमर बने और अपने प्रोडक्ट में चीजें नुक्स निकालें। आप क्या चाहते हैं अपने प्रोडक्ट से, आप खुद ही कस्टमर बन के देखिए। देखिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में पूछिए। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हैं, देखिए कि आपका कस्टमर है कि नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं लिंक्डइन पे पढ़ रहा था कि किसी ने लिखा था कि अगर आपका प्रोडक्ट और आपका कॉन्सेप्ट आपकी दादी माँ को समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए आपका सरल कॉन्सेप्ट है और वो आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से सरलता से आपको अपने कस्टमर्स को समझाना है। कोई भी कस्टमर आपको ये नहीं समझाएगा कि आपके यहाँ एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, या आप कुछ डेटा साइंस लगा रहे हैं। नहीं, मुझे क्या फायदा हो रहा है एज अ कस्टमर। और अगर आप फेल होते हैं तो उसको एक्सेप्ट करो और उसे लर्न करके आगे बढ़ो। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में फेलियर नाम की चीज नहीं होती, या तो एक्सपीरियंस होता है या सक्सेस होती है। तो इस एक्सपीरियंस को गेन करके अगर आप दोबारा लर्न करेंगे, समझेंगे उसको, तो आप सक्सेस पाएंगे। उसके बाद डायनेमिक, आपको डायनेमिक होना चाहिए कि हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए और फटाफट काम होना चाहिए। अगर आपने किसी कस्टमर को कुछ भी चीज कमिट करी है तो वो उस टाइम पे होनी चाहिए। कई बार कस्टमर्स बोलते हैं कि नहीं, हमें इस टाइम पे ये चीज चाहिए, तो वो आपके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए करने की। और उसके बाद इनोवेशन, नवीनता, जिसकी हम नवोद्यम की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो आप नई चीज ही लेके आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज आपको पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा में हम करें, उसके बारे में बात करूंगा। बट स्ट्रैटेजी में इनोवेशन होनी चाहिए। आपकी एजाइलनेस, जो बुद्धता, उसमें इनोवेशन होनी चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग में इनोवेशन होनी चाहिए। आप जो एक्सेप्ट कर रहे हो फेलियर, उसको एक्सपीरियंस को गेन कैसे करें, उसमें एक इनोवेटिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपके फोकस, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो उसमें आपको इनोवेशन लाना चाहिए। तो इनोवेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपकी सक्सेस के लिए, और इसको आपको लाना ही पड़ेगा। और ये आपके पूरी आपकी बौद्धिक संपदा ही है, आपको वो लाना पड़ेगा। लास्ट में होता है कि आप अपने कस्टमर्स, सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आज की डेट में। अगर मैं आईफोन बेच पा रहा हूँ, और आईफोन बिक रहे हैं 60-60 हजार के, इसलिए क्योंकि उनके सर्विस सेंटर है। आप जो भी चाइनीज फोन जो पहले आए थे, ओप्पो और ये सब, इन सबके सर्विस सेंटर्स नहीं थे तो ये बिकते नहीं थे। जैसे ही इनके सर्विस सेंटर आने लगे तो ये फोन बिकने लग गए। तो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहे आपको कितने का भी प्रोडक्ट बेचूं, अगर मैं आपको सर्विस नहीं दे पा रहा हूं तो बहुत मुश्किल होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये सारी चीजें, मेरे अनुभव के साथ, अगर आप ये सब चीजों को एक साथ लेके चलते हैं तो सक्सेस, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और हाँ, इन सब के साथ साथ एक अच्छा मेंटोर और एक अच्छा टीममेट होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप डिस्कस करें और जो आपको क्रिटिसाइज भी करें। अगर आप कुछ गलत करें तो बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम और इनोवेशन से क्या कर सकते हैं। आईपीआर को हम कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये हम सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा हम सबके पास है, हम सभी के पास
है, लेकिन हम उसको अगर अपना अधिकार बनाएं और दूसरों को उसको यूज करने से रोकें तो हमें उससे बहुत फायदे होते हैं। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप सब पेटेंट और जितने भी बौद्धिक संपदाएं उनको क्रिएट करो, नहीं, बट उनसे लर्न करो। अगर माइक्रोमैक्स अगर ड्यू डिलिजेंस करते कि एक पेटेंट एग्जिस्ट करता है, हम इन्फ्रिंज हो सकते हैं, तो हो सकता है उनको आज मोबाइल फोन बंद नहीं करने पड़ते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बौद्धिक संपदा आपको बिजनेस करने में बहुत हेल्प करती है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे। आपकी क्रेडिबिलिटी है, इस क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज की डेट में अगर मैं आपको एक शूज लेने आप जाते हैं नाइकी के शोरूम में और 10,000 रुपए का शूज मिलता है, आप उसे खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उस पर नाइकी लिखा है। अगर वही शूज मैं आपको एक शोरूम में, जो शोरूम में कुछ नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक है, वो शूज अगर 10,000 रुपए का बेचूं तो आप में से कोई भी शूज को नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ व्यापार चिन्ह जो नाइकी का जो ट्रेडमार्क है, उसकी ब्रांड वैल्यू लगी हुई है, तब वो 10,000 रुपए का बन रहा है। अगर नहीं है तो कोई उसे 10,000 रुपए का नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए बौद्धिक संपदा अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हर एंटरप्रेन्योर के लिए, हर बिजनेस के लिए। लाइसेंस है, एनफोर्समेंट, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, ट्रेडमार्क है या पेटेंट है उससे। तो आपको बौद्धिक संपदा पे भी बहुत जोर देना है जब आप अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी चलाते हैं। इसके बाद ये कुछ बेनिफिट्स हैं आपको अगर बौद्धिक संपदा के साथ आप चलते हैं तो। इसमें मैं ज्यादा अभी नहीं जाता हूँ, बस आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीन को देख सकते हैं। हर इंसान को बौद्धिक संपदा से फायदा मिलता है। तो ये कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन। मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। और जहां आती है ग्रोथ की बात, अब मैं आपको ग्रोथ की बात बताता हूँ एक एग्जांपल देके। ये एक ग्रे ऑरेंज है, कंपनी है जो बिट्स पिलानी के स्टूडेंट्स ने स्टार्ट करी थी। जब वो स्टूडेंट थे तब उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया था। तो ये एक पूरी एंटरप्रेन्योर जर्नी है, एक एंटरप्रेन्योर की पूरा जर्नी है कि वो लोग कैसे एंटरप्रेन्योर बने और उन्होंने कैसे अपनी ग्रोथ कर। तो ये लोग एक इंडस्ट्री में थे, अपने कॉलेज के पास ही इनके वेयर हाउस थे, वहां पर गए। तो जितने भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर में, आपके वहां भी इंडस्ट्रीज हैं। उन इंडस्ट्रीज में अगर आप जाते हैं तो इंडस्ट्रीज की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ सर्विस से प्रॉब्लम है। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी कि वेयर हाउस में पैकेज आ रहा है, उसको रैक में लगाना है और रैक से पैकेज को निकालना है डिलीवरी के लिए, तो 1.5 से 2 मिनट और 1.5 से 3 मिनट लगता था। उन्होंने अपने कॉलेज में जाके रोबोट बनाए, जो रोबोट वो काम 30 से 45 सेकंड में कर रहे हैं। इससे कि उनको बहुत सारा हेल्प मिली, वेयर हाउसेज में डिमांड बढ़ी। आज की डेट में ये कंपनी, वेरी फ्यू कंपनीज हैं जो इंडिया से बाहर रोबोट एक्सपोर्ट कर रही हैं। 5 देशों में इनका ऑफिस है, 54 पैटेंट फाइल कर चुके हैं। बौद्धिक संपदा, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जब सोचा, उस प्रॉब्लम को सोचा और जो कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन निकाला, पहले पेटेंट फाइल किया और फिर वो उस कंपनी के पास गया ताकि उनको ज्यादा वैल्यू मिले। और आज की डेट में देखिए उनके कितने सारे पेटेंट्स हैं। तो ये एक एंटरप्रेन्योर जर्नी है ग्रोथ के साथ। आप फोकस हैं, आपका मार्केट कौन है, पहले आप अपने कस्टमर को जानिए। जो भी एंटरप्रेन्योर जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पहले आपका कस्टमर पता होना चाहिए। आप उसको क्या ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो वो आपसे सामान ले या आपसे सर्विस ले, और उसको फिर आप यूनिक वे में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप पेटेंट या ट्रेडमार्क से अपनी बौद्धिक संपदा को, अधिकार को रजिस्टर कराएं और फिर मार्केट में जाएं, फिर उस कस्टमर को जाएं और उनको बताएं कि यदि आप हमारी ये चीज यूज करेंगे तो आपका ये फायदा होगा। और आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, आप सर्वे कीजिए, एंटरप्रेन्योर हैं आप लोग, सर्वे कीजिए, वहीं के वहीं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। आज की डेट में हो सकता है कुछ जो कंपनीज हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में हैं, वो सर्विस ले रही हों दिल्ली से या बैंगलोर से, क्यों ना हम वो सर्विस उन्हें जम्मू के जम्मू में प्रोवाइड करें, कश्मीर में कश्मीर में प्रोवाइड करें, वो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, जो राहुल जी बोल रहे थे कि अगर 60-70 सिटीज होंगी तो कितना अच्छा होगा, तो वो हो सकता है अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़े तो। और उसके बाद ये कुछ बौद्धिक संपदा की फायदे हैं कि आप उसको, उस पर लोन भी ले सकते हैं, पेटेंट पे उसको लाइसेंस भी दे सकते हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आप ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि हम लोग
जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं, राइट, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम फोकस करके उसकी तरफ जाएं। अगर आप कुछ भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कम से कम उसमें 1 से 1.5 साल लगाइए, और लेकिन तब लगाइए जब आपने स्ट्रेटेजी बना ली है उसकी, आपके पास पूरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, आपको पता है आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। चाहे आप छोटी सी चीज से स्टार्ट कीजिए, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लीजिए, उन्होंने सिर्फ किताब बेचनी स्टार्ट करी थी। जब वो किताब बेचने में एक्सपर्ट हो गए तब उन्हें लगा कि हाँ, ये सेम मॉडल हम रेप्लिकेट कर सकते हैं दूसरी चीजों के लिए, तब वो बने हैं। तो हम आज की डेट में फ्लिपकार्ट को फ्लिपकार्ट मत देखिए, जब फ्लिपकार्ट स्टार्ट हुआ था तब देखिए। तो हमें वो स्ट्रेटजीज अपनानी है, और अगर फेलियर होता भी है तो उसे घबराना नहीं। और ग्रोथ आपकी हमेशा तब होगी जब आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, आपको पता होगा मार्केट में क्या चल रहा है, और आप अपने बौद्धिक अधिकारों को सिक्योर करके चलेंगे। तो मैं इस चीज से अभी अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ शेयर करने के लिए, और किसी के भी कोई भी सवाल हैं तो हम हैप्पी टू आंसर। तो मैं कुछ देख पा रहा हूँ। रियाज शेख कह रहे हैं कि इफ स्टार्टअप इज मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड देन इट इज रिक्वायर्ड टू टेक पेटेंट ऑन नेम। नेम हमेशा ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट आपको टेक्नोलॉजी पे मिलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टअप्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मुझे अपना नेम पेटेंट कराना है, वो गलत है। आपको ट्रेडमार्क कराना है अपना नेम, ब्रांड नेम, और पेटेंट के लिए आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो और मोबाइल ऐप के लिए भी आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। एंड एक संजय शर्मा का है क्वेश्चन, सर हाउ डू वी मेक श्योर दैट एडिशनली स्टार्टअप्स मस्ट यील्ड रेगुलर इनकम लाइक फ्रॉम फॉर्मल इंडस्ट्री। देखिए, ये श्योर करने के लिए आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले आप उन कस्टमर्स को पकड़िए जो लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट है, राइट, जिनके साथ आप टाई अप कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी का पार्ट है, और वो आप ही बता पाएंगे कि आपका ये मार्केट रिसर्च है, इन लोगों को अगर मैं सॉल्यूशन देता हूं तो ये कल की कल मेरे से जुड़ जाएंगे, चाहे वो स्मॉल अमाउंट के लिए जुड़े। तो आपको एक सस्टेनेबल इनकम लेना बहुत ही जरूरी होता है। और या सेशन ऑफ आईपीआर है, और उसके बाद अब और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लिख सकते हैं। शुड पेटेंट बेस्ड ओनली ऑन डिवाइस? नो, पेटेंट डिवाइस, प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रोसेस किसी का भी हो सकता है। Hello, sir. यस Vidi. Sir, I want to know about unregistered trademark because as we know that we can those trademarks which are not registered, we can use the logo on our products. But if someone copies our products or services, then we can file cases against them and we can go against them because our trademark is actually unregistered. हाँ विधि, इसमें मैं हालांकि ये क्वेश्चन आप इतना सही बोला कि कल आईपीआर में लेंगे, बट सिंस आपने पूछा है तो मैं आपको आंसर देता हूँ। अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को भी आप एनफोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। आप कॉमन लॉ रेमेडी हम ले सकते हैं, और उसको अपना एविडेंस कि आपका ट्रेडमार्क जो इन्फ्रिंज कर रहा है उससे पहले से है, आपका ट्रेडमार्क वेल नोन है, उस तरीके से फिर आप कोर्ट में जाके अपनी चीजें प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। Okay, okay, sir. Thank you, sir. Thank you. And इस पेटेंट इज रिक्वायर्ड रेसिपीज पे हम लोग आई थिंक रेसिपी पे हम कॉपीराइट ले सकते हैं, पेटेंट नहीं मिलता है। और एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाउ टू स्टार्ट अप विदाउट को फाउंडर। मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, उमेश का है। उमेश, आप स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए स्ट्रेटजी के साथ अपना, बिना को फाउंडर जरूरी नहीं है तो स्टार्ट विद, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको को फाउंडर नहीं, आपको टीम मेंबर तो जरूर चाहिए होंगे जो आपके लिए आपके साथ काम बांट सकें, आपका बर्डन को शेयर कर सकें। तो बिना को फाउंडर के आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो विवेक, मैं अभी रोकना चाहूंगा, हमारे पास 5:03 है, तो कोशिश करते हैं कि अगला सेशन टाइम पे शुरू करें। और बहुत ही बढ़िया आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी प्रेजेंटेशन भी हिंदी में होगी जहाँ लिखे हुए थे वर्ड्स, तो मैं भी उनको सीखने की कोशिश कर रहा था कि स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं और वो कहते हैं। और जैसा मैंने शुरू में बताया, तो हम लोग थोड़ा ऐसा नहीं है कि हिंदी
के प्रति वो रख रहे हैं कि हम केवल हिंदी को यूज करना चाहते हैं, हम ऐसी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं ऑडियंस को बताने के लिए कि भाई जो आपको समझ में आए। तो इसीलिए ये प्रेजेंटेशन मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, क्योंकि ये सब ये बड़ी आराम से समझ में आया और बताया गया इसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या चीजें होती है। इसी के साथ मैं विवेक को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी सरल भाषा में एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, नवोद्यम क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को समझाया। तो इसी के साथ मैं अब वेलकम करना चाहूंगा राखी का। राखी बाय द वे मेरी पार्टनर भी है, लाइफ पार्टनर भी है, सब कुछ है। तो वो अब आपको बताएंगी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में। और काफी मेरे क्लाइंट कहते हैं कि मेरी दुकान उन्हीं के कारण चलती है क्योंकि ऑपरेशन वही लीड करती है। तो इसी के साथ राखी वेलकम ऑफिशियली। एंड आपका जो सेशन वो है कि कंपनी कैसे स्टार्ट करे। तो ऑडियंस को मैं बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर है ना बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं कि भाई हम प्राइवेट लिमिटेड क्यों बनानी चाहिए, एलएलपी क्यों नहीं बनानी चाहिए। हम मान के चल रहे हैं कि वो सब चीजें हमारे पास क्लियर है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही जरूरी है एक स्टार्टअप के लिए बनाना, अगर वो फंडिंग देख रहे हैं फ्यूचर में। अगर वो फंडिंग नहीं देख रहे हैं तो कोई भी टेम्पलेट वो यूज कर सकते हैं कंपनी बनाने के लिए या बिजनेस करने के लिए। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 80% कंपनी को फंडिंग चाहिए होती है, तो इसलिए उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए। राखी, ओवर टू यू। आप थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। सो सभी को मेरा नमस्ते। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती, मैं एक छोटा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैसे तो अमित ने बता ही दिया है। सो बेसिकली बाय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द कंप्लायंसेस एंड कंपनी रिलेटेड मैटर्स। सो जैसे आपको पता है कि स्टार्टअप बड़ी जो है डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करता है, डिफरेंट सेगमेंट्स अंडर वन रूफ। तो इसमें क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम प्रोवाइड करें अकाउंटिंग सर्विसेज है, एचआर है, पेरोल हो गया, कंप्लायंसेस हो गए, टैक्सेशन सर्विसेज हो गए, फाइनेंस हो गया, कंसल्टेंसी, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चरिंग, ये सारे हमारे पिलर्स हैं। इसमें से सिर्फ एक है जो कंप्लायंसेस, एक बहुत ही बेसिक चीज आ जाती है जो शुरुआत से लेके अंत तक आपको हर जगह इफेक्ट करता है। तो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत छोटे ही प्रेजेंटेशन के साथ आपको बस एक हाईलाइट देने की कोशिश करूंगी कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन जो है किस तरह से स्टेप्स हैं उसके, क्या उसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कैसे वो आपको बेनिफिट दे सकता है और कैसे उसको बहुत ही सिंपल तरीके से अपनाया जा सकता है एज अ स्टार्टअप फाउंडेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब हम किसी कंपनी को बनाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले एक जो बेसिक जो एक चीज है कि कंपनी किस नाम से बनेगी, उसके लिए हमें एक नाम, एक अपना आइडेंटिफिकेशन सोचने की जरूरत होती है। तो हम सबसे पहले नेम एप्लीकेशन के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे आप अगर स्लाइड पे देख पा रहे हैं तो मैंने 2 वेबसाइट्स के लिंक आपको दिखाए हुए हैं। पहला है कि अगर आपको नेम चेक करना है कंपनी का तो आप इस एमसीए की वेबसाइट पे, इस पोर्टल के थ्रू आप अपनी कंपनी के लिए जो एस्पिरेटेड नेम है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करके इसको अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी, रिजेंबलनेस, उस तरह की सारी चीजें दिखाई देंगी कि सपोज मेरे को एक राखी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड अगर इनकॉर्पोरेट करनी है और अगर मैं इस लॉगिन इस यूआरएल के थ्रू उसको सर्च करने की कोशिश करती हूँ तो अगर मुझे वहां पे ऑलरेडी राखी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी किसी ने उस कंपनी नेम से कंपनी इनकॉर्पोरेट करी हुई है, तो मैं वो नेम अप्लाई नहीं कर सकती। इस तरह से करके मैं डिफरेंट नेम्स को एनालाइज कर सकती हूँ और अपना जो मेरा ऑप्टेड नेम है मैं उसको चूज कर सकती हूँ। उसके बाद सेकंड ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क के लिए ipindiaonline.gov.in करके वेबसाइट है। आप इसके ऊपर लॉगिन करके अपना ट्रेडमार्क का एस्पिरेटेड जो भी नेम है, लोगो है, उस चीज को चेक कर सकते हैं। 2 ये बेसिक चीजें इसलिए जरूरी है कि जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए नेम सोचते हैं और उस नेम के लिए कई बार हम लोग स्ट्रगल करते हैं कि नहीं हमें यही नेम चाहिए, तो उसमें रिजेंबलनेस और रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ आइटम्स हैं जिनके बेस पे ये कंपनी नेम अवेलेबल और नॉन अवेलेबिलिटी डिसाइड होती है। इसमें एक
बहुत ही जेन्युइन सा एक क्वेश्चन जब भी हम लोग इनकॉर्पोरेशन शुरू करते हैं तो ज्यादातर स्टार्टअप्स को फाउंडर्स करते हैं कि मेरे को अगर ये कंपनी नेम नहीं मिल पा रहा है तो मैं अपना ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर करूंगा। तो इसके लिए बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि कंपनी नेम और ट्रेडमार्क ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। तो आप कंपनी नेम जो भी आपको दिख रहा है, अवेलेबल है, रूल्स के अकॉर्डिंग मिल रहा है, आप उसके साथ इनिशिएट करिए। ट्रेडमार्क इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी नेम, और वो जब आप कंपनी फॉर्म कर चुके हैं तो उसके बाद आप डिफरेंट नेम से ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके ट्रेडमार्क्स डिफरेंट नेम पे हैं और जिनका कंपनी नेम डिफरेंट है। दूसरी चीज जो एंटरप्रेन्योर्स के माइंड में हमेशा एक सवाल के तौर पे रहती है कि शेयर होल्डिंग। हम लोग शेयर होल्डिंग कैसे डिसाइड करें? हमने कंपनी बनाने का तो सोच लिया, लेकिन हम लोग ये कैसे डिसाइड करें कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन देगा या किसका शेयर कितना होगा? तो इसमें हमेशा एक चीज रहती है कि आपको को फाउंडर्स को जो भी स्टार्टअप फॉर्म करने जा रहे हैं उनको आपस में बैठकर डिसाइड करना होगा कि कौन टाइम ज्यादा देगा, कौन अपने एफर्ट्स देगा, किसका कैपिटल इन्वॉल्व रहेगा, किसके पास क्या क्षमताएं हैं। जिसके पास जो एफिशिएंसीज हैं उसके बेस पे आप इस रेशियो को डिसाइड कर सकते हैं। तो शेयर होल्डिंग जो होती है बेसिकली आपस के जो आपका शेयर है उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे डिसाइड करती है। सपोज आपने 1 लाख रुपए से कंपनी इनिशिएट करी, आगे चलते चलते आपके कंपनी में प्रॉफिट्स हैं और आपकी वैल्यू बढ़ के सपोज 10 लाख हो जाती है कंपनी की वैल्यूएशन। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो अगर आपका रेशियो 50-50 था तो जो आपके जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें आप 50-50 के पार्टनर रहेंगे। तो बेसिकली शेयर होल्डिंग का जो इंपॉर्टेंस होता है वो आपके प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉस बियरिंग के बेस पे चलता है। तीसरा एक सवाल रहता है कि कैपिटल के बात जब हम करते हैं तो कंपनीज एक्ट के अंदर 2 एस्पेक्ट्स हैं कैपिटल के, एक ऑथराइज कैपिटल, एक पेड अप कैपिटल। तो ज्यादातर कंफ्यूजन ये रहता है कि ऑथराइज कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, क्या पेड अप कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल सेम होने चाहिए, क्या ये डिफरेंट हो सकते हैं, क्या पेड अप कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो जो बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए वो सिंपल ये है कि ऑथराइज कैपिटल जो है वो एक मैक्सिमम लिमिट है किसी भी कंपनी के लिए जहां तक आप अपनी कंपनी की कैपिटल को लेके जा सकते हैं। पेड अप कैपिटल जो है, पेड अप कैपिटल जस्ट एक आपकी ऑपरेशनल कैपिटल है कि जब कंपनी बन जाएगी उसके बाद आपको कंपनी के बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करना है और जो बेसिक पैसा आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अगला सवाल रहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रख सकते हैं, कैसे रखना चाहिए, क्या हम अपने घर को रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या किसी कोवर्किंग स्पेस में लें, या फिर हमें जरूरी है कि हम किसी बिजनेस प्लेस पे जाके ही कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लें और वहां पे हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर करें। तो इसके लिए जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रखना है। कंपनीज एक्ट सिर्फ ये बोलता है रूल्स के अकॉर्डिंग कि जब भी आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर कर रहे हैं तो जितनी भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज हैं वो आप पूरी करें। जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बोगस नहीं होना चाहिए, वो एग्जिस्टिंग होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए। जिसके लिए आपको कुछ प्रूफ्स उन्होंने डिसाइडेड किए हुए हैं, वो प्रूफ्स आपको सबमिट करने हैं। आप रेजिडेंशियल प्लेस पे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रख सकते हैं, कोवर्किंग में भी ले सकते हैं, कमर्शियल प्लेस, इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज हैं कंपनीज के लिए, तो आप उसमें भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जब भी कभी हम अपना किसी प्लेस पे रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम ये चीजें ध्यान में रखें कि उस प्लेस को हमें ऑप्ट करने में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। जैसे कि सपोज आप इंक्यूबेशन सेंटर में हैं और वहां पे अगर आप कंपनी फॉर्म करना चाह रहे हैं और इंक्यूबेशन सेंटर को ही अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पे हमें एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंडेटरी उनको सबमिट करना है क्योंकि वो एग्जिस्टेंस का प्रूफ मांगता है लॉ, और दूसरा जो ओनरशिप के पेपर्स होते हैं कई बार वो भी मांगे जाते हैं। तो क्या इंक्यूबेशन सेंटर आपको अपने ओनरशिप के पेपर शेयर करने के लिए सक्षम होंगे, क्या वो चाहेंगे? इस तरह के कुछ सवाल हैं जिनके आंसर लेने के बाद आप इनमें से किसी एक को चूज करेंगे। जब हम रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करते हैं, हाँ जी,
राकेश जी, एक क्वेश्चन पूछा है इसमें आयुष ने कि कैपिटल, जो ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल को प्लीज एक बार थोड़ा सा और समझा दीजिए। ओके, ऑथराइज कैपिटल एक मैक्सिमम लिमिट है जो कंपनीज एक्ट देता है कि अगर आप अपनी कंपनी बना रहे हैं तो आप अपनी कंपनी में, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि 10 लाख रुपए तक का मैं ऑथराइज कैपिटल चूज करती हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं 10 लाख रुपए तक अगर ऑथराइज कैपिटल रखती हूँ तो मेरी पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 10 लाख तक जा सकती है। अगर मुझे कल को कंपनी में और कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो मुझे उस कैपिटल को इंक्रीज करने से पहले आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो जो आपने मुझे 10 लाख की अथॉरिटी दी है कैपिटल की, उसको इंक्रीज कर दीजिए। और अगर उसको सपोज मैं 15 लाख लेके जाना चाहती हूँ तो 10 लाख और 15 लाख के बीच में जो डिफरेंस होगा 5 लाख का, वो मुझे इंक्रीज करवाना पड़ेगा। और उस इंक्रीमेंट के ऊपर गवर्नमेंट कुछ ड्यूटीज लेती है, स्टैंप ड्यूटीज हैं, कुछ एमओए फीस, एओए फीस होती है जो गवर्नमेंट लेती है। जब गवर्नमेंट से मुझे अप्रूवल मिल जाएगा कि मेरी 15 लाख ऑथराइज कैपिटल हो गई है, उसके बाद फिर मैं अपनी पेड अप कैपिटल को इंक्रीज कर सकती हूँ और अपनी कंपनी के बैंक में पैसा इंट्रोड्यूस करके अपने बिजनेस में यूज कर सकती हूँ। So this is the basic difference between authorized and paid up capital. I hope आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम बात कर रहे थे रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए। रजिस्टर्ड ऑफिस में एक तो प्लेसेस का जो डिसीजन है वो मैटर करता है। उसके बाद जब भी हम प्लेस चूज कर रहे हैं तो जो एक बहुत ही मेजर एक इंसिडेंट है वो है स्टैंप ड्यूटी और एमओए फी। जैसे कि आप लोगों को पता है, स्टेट वाइज इंडियन गवर्नमेंट स्टेट वाइज ड्यूटीज कलेक्ट करती है। यहाँ पे जो स्टैंप ड्यूटी होती है दिल्ली में अलग होती है, हरियाणा में अलग होती है, पंजाब में अलग होती है। हर स्टेट की अलग अलग स्टैंप ड्यूटीज हैं। तो अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया है जिसमें 4 स्टेट्स की ड्यूटीज और एमओए फी को मैं दिखाना चाह रही हूँ। सपोज आप हरियाणा में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और 10 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल आप चूज कर रहे हैं तो आपको 195 रुपए देने पड़ेंगे। दिल्ली में कर रहे हैं तो 1710, महाराष्ट्र में थोड़ा ज्यादा है, पंजाब में थोड़ा और भी ज्यादा है, 15,025 रुपए आपके केवल ड्यूटी में खर्च हो जाएंगे। अगर सपोज 10 लाख के बाद आप 15 लाख तक जाते हैं तो कुछ जगह पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, हरियाणा में वो सेम रहता है। इसका बेसिक रीजन ये है कि पहले ये जो लिमिट हुआ करती थी कि 10 लाख ही होती थी, लेकिन इसके बाद अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया और इसको 15 लाख तक कर दिया कि आप 15 लाख तक अगर एक ही बार में अगर आप ले रहे हैं कैपिटल को तो आपको डिफरेंशियल थोड़ा देना होगा। लेकिन अगर आप 15 लाख से 16 लाख पे जब आप जंप करते हैं तो 1 रुपए से लेके 16 लाख तक जितना भी आपका कैपिटल था उस पूरे के ऊपर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रुपी आफ्टर 15 लाख। तो सपोज अगर आप 16 लाख रुपए अपनी कैपिटल करते हैं और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हरियाणा में ही है तो आपको 1 लाख इंक्रीज करने के लिए 55,000 रुपए की ड्यूटी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा ही विचित्र सा एक चित्रण है इसमें, क्योंकि कभी भी माइंड में ये नहीं आता है कि हमने जब 10 लाख तक करी थी तो 195 रुपए दिए थे, लेकिन जब 16 लाख पे आ गए सब हम सिर्फ 15 और 16 के बीच में 1 लाख इंक्रीज कर रहे हैं तो 55,000 रुपए ड्यूटी कैसे बन गई। तो इस तरह से अगर हम 16 लाख रुपए की कैपिटल रखेंगे तो हमें 55,000 रुपए ड्यूटी के तौर पे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो जब भी हम रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड कर रहे हैं तो 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो अपनी अवेलेबिलिटी, जो भी आपकी स्ट्रक्चरिंग आपने अपने फाउंडेशन की करी है। दूसरा एक प्लेस ऑफ बिजनेस की आप अगर रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाह रहे हैं जहां पे भी, तो वहां पे ड्यूटीज के और गवर्नमेंट फीस के रेट क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक अगर आप इसमें देखेंगे तो हर स्टेट में ये बहुत ऊपर नीचे जाता है, कभी कभी ये अनजस्टिफाइबल हो जाता है। जब कंपनी फॉर्मेशन की बात आती है तो कंपनी फॉर्मेशन में एक और मुद्दा रहता है डिजिटल सिग्नेचर्स का। डिजिटल सिग्नेचर्स, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि जैसे सपोज कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, हमने बोला कि डिजिटल सिग्नेचर्स अप्लाई करने होंगे, तो लोग क्या करते हैं, वर्ड में अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाया और उसको क्रॉप करके पेपर पे लगा दिया। तो जब भी कभी आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे डिजिटल सिग्नेचर का मतलब वो क्रॉप करा हुआ सॉफ्ट वाला डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। इसके लिए स्पेसिफिकली ऑथोराइज सेंटर्स है, अथॉरिटीज हैं जिनको एमसीए ने ऑथोराइज कर रखा है, जिसमें से कुछ नाम है सिफी है, ई मुद्रा है, एनएसडीएल, एनआईसी, इस तरह से करके ये अथॉरिटीज हैं जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में डिजिटल सिग्नेचर्स तैयार करती हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए क्लास 2 वाला डिजिटल सिग्नेचर्स जो होता है वो अपने को एप्लीकेबल होता है। और इसमें एक जो डिजिटल सिग्नेचर का जो
तरीका रहता है, लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि डिजिटल सिग्नेचर लेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो इसमें सिंपल तरीका है कि एक लिंक आपके पास आता है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना वीडियो वेरिफिकेशन कर दीजिए, बस इतना ही चाहिए। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर रेडी हो जाता है। ये और बहुत सारे सवाल हैं जो को फाउंडर्स के मन में रहते हैं कि डायरेक्टर्स कौन होने चाहिए, शेयर होल्डर्स कौन होने चाहिए, क्या मैं डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों हो सकता हूँ। तो जब हम इन चीजों को सोच रहे हैं तो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। जहाँ पे हम एक छोटे स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप्स में बहुत बार ऐसा होता है कि जो पर्सन स्टार्टअप फॉर्म करना चाह रहा है वो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा हेजिटेशन लगती है कि मैं एकदम से अपनी जॉब कैसे छोड़ूं, मैं एकदम से कंपनी कैसे फॉर्म करूं। तो वहां पे आप कोशिश कर सकते हैं कि आप खुद शेयर होल्डर हो और आपके कोई दूसरा को फाउंडर उसमें डायरेक्टर हो। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टर भी हो और शेयर होल्डर भी हो, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं दीज आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी की जो एक मालिकाना हक होता है वो ओनर्स के पास रहेगा, शेयर होल्डर्स के पास रहेगा। और डायरेक्टर्स जो होंगे वो ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि फुल टाइम पार्ट टाइम इस तरह से करके सेग्रीगेशन किया जा सकता है, तो डायरेक्टर्स को और शेयर होल्डर्स को आप डिसाइड कर सकते हैं आपस में। डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स अलग भी हो सकते हैं। सपोज आप कोई स्टार्टअप फॉर्म करना चाह रहे हैं और उस टाइम आपको पता चलता है कि कोई पर्सन है जो आपको पैसे देने के लिए रेडी है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है आपके साथ इन्वॉल्व होने के लिए, जो ऑपरेशनल चीजें हैं वो आपको करनी है। तो उस केस में आप खुद डायरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं और जो इन्वेस्टर जो आपको पैसे दे रहे हैं उनको आप एज अ शेयर होल्डर्स लेके कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। ये दो बेसिक चीजें हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन और कंपनी के लिए, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और सेकेंड है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मैं आपको बेसिकली दो चीजें ब्रीफ करके बता देती हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, हम इसको कंपनी की बाइबल भी कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5 क्लॉजेज हैं, बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। नेम क्लॉज, आपने अपनी कंपनी का नेम बता दिया, रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है ये बहुत ही क्रिटिकल क्लॉज है मेमोरेंडम के अंदर। ऑब्जेक्ट्स जब भी आप डिसाइड कर रहे हैं तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को डिसाइड कीजिए कि अगर थोड़ा सा जो आपने प्लान किया है अपना ऑब्जेक्ट या अपनी कंपनी का मेन एक्टिविटी, अगर उससे थोड़ा सा इधर उधर भी अगर आप काम करना चाहें तो आप उसको कर सकें। मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा वाइड रखने की कोशिश कीजिए। सपोज मैं ये बोलती हूँ कि मुझे एक ई प्लेटफॉर्म बनाना है या फिर मेरे को एक एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म के साथ कंपनी बनानी है, तो कोशिश ये रहेगी कि जब भी मैं मेमोरेंडम अपने ड्राफ्ट करवा रही हूँ अपने कंसल्टेंट से, तो एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ और जो सपोर्टिव एक्टिविटीज हैं वो भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी कवर हो जाए। इसका रीजन ये है कि लॉ के अंदर एक रूल होता है कि आप एंटीवायरस टू द एमओए कोई काम नहीं कर सकते, तो सॉरी अल्ट्रा वायरस। तो अगर आप ऑब्जेक्ट जो आपने डिसाइड किया हुआ है और जो डिस्क्लोज्ड है आपके मेमोरेंडम के अंदर, उसके बाहर जाके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए लीगल एक्शन के लिए लायबल हो जाएगी। तो जितना आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरी कंपनी एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म के लिए ही काम करेगी, या जो आपने मेंशन कर दी वहां पे 4 एक्टिविटीज, आपकी कंपनी उतना ही काम कर सकती है, उतना ही ऑब्जेक्ट उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आप उसके बाहर काम करना चाहते हैं तो पहले आपको ये ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कराने होंगे, मेमोरेंडम में अमेंडमेंट होगा, उसके बाद ही आप उस एडिशनल काम को अपनी कंपनी में जोड़ सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज ये सिंपली ये डिक्लेयर करता है कि जितनी भी कंपनी की लायबिलिटी है वो पेड अप कैपिटल तक ही लिमिटेड है। कैपिटल क्लॉज है ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज इस तरह से है कि जो कैपिटल क्लॉज है वो आपको हमेशा मेमोरेंडम के अंदर ये व्यू देता है कि कंपनी की ऑथराइज्ड और पेड अप कैपिटल कितनी है। सपोज अगर आप किसी कंपनी की कैपिटल के बारे में जानना चाहते हैं, किसी दूसरी कंपनी की कैपिटल के बारे में, तो आप उसका 5th क्लॉज कैपिटल क्लॉज देखेंगे मेमोरेंडम के अंदर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी की ऑथराइज्ड और पेड अप कैपिटल कितनी है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी के बायलॉज हैं, इसके अंदर जो भी आप पावर्स देना चाहें डायरेक्टर्स को वो दे सकते हैं। जो भी इसके अंदर डिक्लेयर्ड होता है कंपनी उतने ही काम के लिए लायबल होती है और लिमिटेड रहती है। जैसे आपने डायरेक्टर्स को कुछ पावर्स दे रखी है कि डायरेक्टर्स लोन ले सकते हैं, डायरेक्टर्स इतने रुपए तक का लोन बिना
शेयर होल्डर्स की परमिशन के ले सकते हैं। तो आप इन सारी टर्म्स को अपने बायलॉज के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने इन्वेस्टर्स के साथ एग्रीमेंट किया, आपकी कंपनी में फंडिंग हुई, उसके बाद सपोज आपने इन्वेस्टर्स को राइट दिए हैं बहुत सारे, कि आपको मीटिंग अटेंड करने का राइट दिया, या आपको बहुत सारे अफर्मेटिव राइट्स दिए कि सपोज अगर हम 25 लाख रुपए से ज्यादा का कोई फर्नीचर अपनी कंपनी में लेंगे तो आपकी परमिशन से ही लेंगे, अदरवाइज कंपनी के डायरेक्टर्स अपने आप 25 लाख से ज्यादा का फर्नीचर नहीं खरीद सकते। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं, इस तरह के क्लॉजेस होते हैं जो आप आर्टिकल्स के अंदर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और इन आर्टिकल्स के बेस पे ही आपकी कंपनी अपना एक्ट करती है। जो डेली एक्टिविटीज हैं या जितनी भी एनुअल, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो भी एक्टिविटीज होंगी, उनके लिए आप रूल्स इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन क्या करने के लिए ऑथराइज होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और कंपनी किस तरह से एफिशिएंटली काम करेगी। ये बेसिक आइटम्स जो मैंने भी आपको बताए हैं, डिस्कस किए हैं, ये सारे चीजें हैं जो हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते टाइम ज्यादातर कंसल्टेंट से पूछते हैं, और जो हमारे लिए हमेशा एक सवाल की तरह खड़े रहते हैं कि हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा, या फिर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कैपिटल कितनी रखेंगे, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रखेंगे, कैसे कंपनी काम करेगी, डायरेक्टर कौन होंगे। अब इसके बाद ये मैंने कोशिश की है आपको ब्रीफ में एक बार पूरा प्रोसेस समराइज करने की, कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन में बेसिक जो आइटम्स हैं वो क्या हैं। डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके, जितने भी अभी हमने पिछले पॉइंट्स डिस्कस किए, उनके बेस पे जब हम एक कलेक्टिव वे में डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर देते हैं, कंपनीज के डायरेक्टर्स के, शेयर होल्डर्स के आईडी, एड्रेस प्रूफ्स वगैरह, उनको हम स्पाइस प्लस नाम से एक फॉर्म है आरओसी के साथ हम उसको अपलोड करते हैं। अप्रूवल में जाता है वो फॉर्म, 6 या 7 दिन का उसमें टाइम प्रैक्टिकली लग रहा है। गवर्नमेंट तो डिक्लेयर करती है कि 72 आवर्स के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, लेकिन अभी कोविड सिचुएशन है, आप ये मान लीजिए, या प्रैक्टिकल एफिशिएंसीज प्रॉब्लम कर रही हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी हैं लोगों के साथ, तो अभी इसमें 7 से 10 दिन का टाइम लग रहा है। तो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म के थ्रू आप पेपर सबमिट करेंगे, अप्रूवल होगा। अप्रूवल के बाद जो एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जब आपको रिसीव हो जाएगा तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डायरेक्टर्स की, वो होगी बैंक अकाउंट ओपन करवाना। बैंक अकाउंट ओपन करने के जस्ट बाद आपको अपना इनिशियल कैपिटल अपने बैंक में सबमिट करना है, क्योंकि जब तक आप अपना इनिशियल कैपिटल सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते। शेयर सर्टिफिकेट इशू करना बहुत ही जरूरी है कंपनी जस्ट इनकॉर्पोरेट होने के बाद, क्योंकि जब आप शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, कंपनी के अंदर कैपिटल आती है, तभी आप बिजनेस कमेंसमेंट का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बिजनेस कमेंसमेंट का जो एप्लीकेशन है, ये इस बात का प्रमाण है कि कंपनी बन चुकी है और कंपनी ऑपरेशनल है। ये एक मैंडेट है जो अभी कुछ समय पहले आरओसी ने इम्प्लीमेंट किया। इससे पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का एप्लीकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं हुआ करता था, ये केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए होता था। तो बहुत बार ये देखा गया कि कंपनी फॉर्म तो हो गई, लेकिन कंपनी के बैंक में ना तो फंड आया और ना ही शेयर सर्टिफिकेट इशू किए गए। कंपनी का बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ कई केसेस में, तो और कैश के थ्रू वो ट्रांजैक्शन शुरू हो गई। तो इस तरह से बहुत सारे ग्लिचेस क्रिएट हो जाते थे। तो आरओसी ने ये एक इनिशिएटिव लिया कि बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, यानी कि कंपनी आपकी ऑपरेशनल है, इस बात का प्रमाण ले लीजिए। इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट की कॉपी लगानी पड़ती है फॉर्म के अंदर, जिसमें आप ये दिखाते हैं कि हमने अपना कैपिटल का पैसा बैंक के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके लिए एक लिमिट दे रखी है उन्होंने 2 महीने की। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 2 महीने के अंदर अंदर आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपकी कंपनी रेडी है और आप जो डिसाइड किया है बिजनेस, आप उसको चालू कर सकते हैं। राखी, थैंक यू टाइम पर कंक्लूड करने के लिए। बिल्कुल अभी 5:28 हुए। लेकिन राखी, मोस्टली जो क्वेरीज है ना, वो एथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल के अगेंस्ट के लिए हैं। 2-3 क्वेरीज आई हैं जिसको लोग थोड़ा सा, उसको मुझे लगता है कि अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। कुछ और क्वेरीज है तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो वो कह रहे हैं कि एथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल दोबारा से बता दीजिए क्या डिफरेंस है। और दूसरा, अगर हमने अपनी कोई कैपिटल रख ली है, उसको कल को इंक्रीज करना हो तो क्या प्रोसेस रहता है? तो क्या ये कैपिटल इंक्रीज हो सकती है या जिंदगी भर वही रहेगी जो आपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम? अमित जी, एक क्वेश्चन और इसी के साथ कि इन केस अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है
तो वो पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा, तो क्या वो इफेक्ट करेगा आपकी पेड अप कैपिटल और इस थर्स्ट कैपिटल को? बिल्कुल, बहुत हाँ ही जी, अच्छा शर्मा क्वेश्चन है। जी, तो बाकी हाँ, ये तीनों क्वेश्चन आप ले लीजिए। सबसे पहले मैं लेती हूँ जो क्वेश्चन है कि मैंने ऑलरेडी एक कंपनी बना ली है जिसमें मेरी एक पेड अप कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल डिक्लेयर्ड है, तो क्या मैं उसको चेंज कर सकती हूँ? इसका आंसर है यस, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। मैं इसको इंक्रीज भी कर सकती हूँ, मैं इसको डिक्रीज भी कर सकती हूँ। दोनों तरीके अवेलेबल होते हैं। रिडक्शन डिक्रीज करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको कहते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल, और बढ़ाने के लिए जो हम करते हैं दैट इज इंक्रीज ऑफ कैपिटल अंडर एसेट 7। ये दो टर्मिनोलॉजीज है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। मैंने 5 लाख रुपए पेड अप और 5 लाख रुपए ऑथराइज से कंपनी शुरू करी। मेरी कंपनी को 1.5-2 साल हो गया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे फंड्स की और जरूरत है और मुझे अपनी कैपिटल बढ़ानी है। तो उसके लिए मैं सिंपल एक शेयर होल्डर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगी। इसको ईजीएम ऑर्गेनाइज करना कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ईजीएम ऑर्गेनाइज करके एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि हमारी कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो 5 लाख है और हमें ऑपरेशनल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए और फंड्स की जरूरत है, तो हम इसको 5 से 10 करना चाहते हैं या 5 से 8 करना चाहते हैं। वो उसकी अप्रूवल रिकॉर्ड करने के बाद वो रेजोल्यूशन आप आरओसी में फाइल कर दीजिए। आरओसी उसको टेक केयर करेंगे और उसको अप्रूवल दे देंगे और आपकी जो कैपिटल है वो 5 से 8 हो जाएगी। ये तो बात हुई ऑथराइज कैपिटल की, यानी कि ऑथराइज कैपिटल मेरी हाईएस्ट लिमिट जितना की कंपनी में मैं पैसा डाल सकती हूँ। अब एक्चुअल में मैंने सोचा कि 8 लाख की तो मैंने परमिशन ले ली, पर मेरे पास अभी राइट नाउ 2 ही लाख रुपए हैं और एडिशनल डालने के लिए। तो 5 मेरी ऑलरेडी पहले थी, 2 लाख रुपए मैं कंपनी में और डालना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं जो मेरी पेड अप कैपिटल है उसको इंक्रीज कराने के लिए मैं राइट्स इशू करूंगी, या जो भी मेरे वेरियस तरीके हैं जो भी मैं ऑप्ट कर रही हूँ उस तरीके से मैं अपनी कैपिटल इंक्रीज करूंगी। और पेड अप कैपिटल इंक्रीज करके मैं अपने कुछ फॉर्म्स पैस 3 वगैरह होते हैं उनको फाइल करूंगी। आरओसी अप्रूवल नॉर्मली दे देते हैं बिकॉज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्स होते हैं पेड अप कैपिटल वाले, क्योंकि आरओसी को भी पता है कि जब आप जेन्युइनली काम कर रहे हैं और आप अपनी कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो ही आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो रही है। तो इन पैस्ट्रीज वगैरह में नॉर्मली ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेटरी फॉर्म है। तो इस तरह से आप अपनी कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप ये आंसर आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज शर्मा जी जो पूछ रहे हैं कि मेरे पास कोई इन्वेस्टर है और मुझे उस टाइम पे अपनी कैपिटल इंक्रीज करनी है, तो इसमें मैं एक बहुत ही टेक्निकल सा एक एस्पेक्ट है जिसको लेना चाहूंगी। जब हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हम इन्वेस्टर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं क्या वो हम इक्विटी का कर रहे हैं या फिर हम किसी और तरह की प्रेफरेंशियल राइट्स वाली कैपिटल इशू करना चाह रहे हैं। तो अगर हमें इसका आंसर मिल जाता है कि जैसी एग्जिस्टिंग कैपिटल कंपनी में है सेम करनी है हमें इशू, तो हम जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है स्टेप सेम तरीके से पहले ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करेंगे और राइट्स इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए नए इन्वेस्टर्स को अलॉट कर देंगे जिससे हमारी पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमें ये पता चलता है कि कुछ प्रेफरेंस राइट्स के साथ इक्विटी कैपिटल अलॉट होनी है नए इन्वेस्टर्स को, तो पहले हमें उस नई कैपिटल का नेचर समझना होगा। किस नेचर की कैपिटल आप बढ़वाना चाहते हैं, उस नेचर की कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। स्टेप सेम रहेंगे जैसे पहले वाले में थे, लेकिन सिर्फ उस पे आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है उससे डिफरेंट है ये, इसकी क्या क्वालिटीज हैं, इसके साथ क्या विशेषताएं अटैच्ड हैं, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको रिजोल्यूशन के साथ लगाना होगा और उसको आप फाइल कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल। पेड अप कैपिटल बढ़ाने का सेम तरीका रहेगा, पैस 3 के थ्रू आप राइट्स इशू कीजिए या प्राइवेट प्लेसमेंट कीजिए, आप पेड अप कैपिटल बढ़ा सकते हैं। राखी जी, अगर कोई इन्वेस्टर से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, मेरी कंपनी मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल पेड से 1 लाख है या 5 लाख है और ऑथराइज्ड से 10 लाख है और इन्वेस्टर ने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया मेरी कंपनी में, तो हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी कि वी कैन कंटिन्यू विद द सेम पेड एंड ऑथराइज्ड? देखिए बिल्कुल पड़ेगी। इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं तो उसमें जो प्रचलित जो टर्मिनोलॉजीज चलती हैं उसमें क्या है कि क्या वो प्रीमियम पे दे रहे हैं। मतलब सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होगा कि क्या कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। वैल्यूएशन के बेस पे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हमें 10 रुपए पे ही शेयर इशू करने हैं या फिर उसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट भी इन्वॉल्व है। तो ये जो प्रीमियम है ये हमें हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि हमें एक्चुअल में जरूरत कितनी कैपिटल को बढ़ाने की है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देती हूँ। मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए है और उसमें इन्वेस्टर कह रहा है कि मैं 20 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप उसको कितना स्टेक दे रहे हैं, आप उनको 10% स्टेक दे रहे हैं।
20 लाख के बदले में जब आप 10% स्टेक दे रहे हैं और करंट में जो आपकी कैपिटल है वो 1 लाख है, 1 लाख में 100% स्टेक है आपके पास, यानी कि 100% कंपनी आपकी है 1 लाख रुपए की वैल्यू में, और 20 लाख रुपए में आप 10% स्टेक दे रहे हैं, तो जो वैल्यूएशन का डिफरेंस है वो प्रीमियम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 20 लाख रुपए में आप उनको अपनी कंपनी में पूरे के पूरे शेयर अलॉट कर दें। तो जो डिफरेंस होगा उसको हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा प्रीमियम और फेस वैल्यू में, और उसके बेस पे हम उस कैपिटल को इंक्रीज करेंगे और उसके बाद ही हम उनको अलॉटमेंट करेंगे। बिल्कुल, मैं इसको है ना एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ कंपनियों को कि जब भी आप कंपनी स्टार्ट करें तो अपनी एथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपए रख लें, क्योंकि 0 से लेके 10 लाख रुपए तक सेम फीस लगती है, तो हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपकी एथोराइज कैपिटल पर तो 0 फीस लगेगी, केवल स्टैम्प ड्यूटी लगेगी 10 लाख रुपए पर। आप अपनी पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए रख लें, जो क्या बोलते हैं कि 100% रहेगा, और आपका इन्वेस्टर अगर आपसे 10% शेयर ले रहा है तो आपने उसको 10,000 रुपए के शेयर देंगे, और अगर उसके बदले वो 20 लाख रुपए दे रहा है तो आपका 19,90,000 रुपए जो जाएगा वो आपका शेयर प्रीमियम में जाएगा। तो आपको पेड अप कैपिटल जब ही बढ़ती है जब आप कोई नए शेयर्स इशू करते हैं। तो अगर इसको समराइजेशन वे में कहें तो एथोराइज कैपिटल वो वाली कैपिटल होती है जहां पर जिसके लिए आपने एमसी को फीस दी हुई है कि जहां तक आप शेयर इशू कर सकते हैं, और पेड अप कैपिटल वो होती है जो आपने एक्चुअल में इशू कर दिया। तो दोनों के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है कि आपने कितनी पावर एमसी से ली हुई है और पेड अप कितने असली में शेयर सर्टिफिकेट इशू कर। आई होप डॉक्टर इसको कैपिटल को हमेशा फेस वैल्यू के साथ लिंक करके ही समझना पड़ेगा, तभी ये ज्यादा क्लैरिटी देगा। जी जी सर जी। तो मेरे ख्याल से अभी बाकी क्वेरीज के लिए मैंने अपना ईमेल आईडी भी चैट बॉक्स पे छोड़ दिया है। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप फील फ्री टू राइट एट info@startupbuddy.co. हमारी टीम आपको रीजनेबल टाइम में उसको रिवर्ट कर देगी, और जिस तरह की भी आपकी क्वेरीज हैं टू रीच आउट। आई थिंक अमित जी आज का बहुत बढ़िया रहा, हमारा आज का हमारा थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में उसमें एंगेज रहे, बट स्टिल वी वर एबल टू वाइंड इट अप इन टाइम आज के सेशन में। बहुत इंफॉर्मेटिव जो दोनों विवेक जी का और मैम का बहुत बढ़िया से, आई थिंक होपफुली बहुत सक्सेसफुल, और इन लोगों को जो मतलब सेशन आउटपुट और जो प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत बढ़िया है। आई फील लाइक कि सभी लोग जो यहाँ पे इसका बेनिफिट उठाते रहेंगे। और आज का सेशन अमित जी फिर वाइंड अप करते हैं। अमित जी हेलो, हाँ जी, मैं यही कह रहा था कंक्लूड करते हैं। मैं केवल देख रहा था कि अभी राहुल देव सर भी मुझे दिखाई दे रहे थे 2 मिनट पहले, तो अगर राहुल सर है और वो कुछ कहना चाहें, अगर उन्होंने लेफ्ट कर दिया तो मेरे ख्याल से कंक्लूड करते हैं सर आज का टाइम। जी 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 जी, तो फिर 4 बजे मिलते हैं। आई विल रिक्वेस्ट कि जो लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं वो और लोगों, क्योंकि पर्पस इज ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी इजी लेवल से आप तक लाई जा सके, हमारी कोशिश ये है। तो आप जितने अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो ज्वाइन करने के लिए बोलिए, और यही जो गूगल आईडी, गूगल मीट आईडी यही रहेगा कल के सेशन के लिए भी। तो आप इसको फ्रीली शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपको लगता है जो भी इंटरेस्टेड हो सेशन को अटेंड करने के लिए। अमित जी एक जाने से पहले कल के सेशन का एक बार वो मैं चाहूंगा कि टीबीएससी टीवी पर दिखा दे कि कल का सेशन क्या है, जस्ट 1 मिनट में। या बिल्कुल आप स्क्रीन पर दिखा दीजिए। राखी तुम्हें एक बार म्यूट करना पड़ेगा। ओके श्योर। विकी और स्वाति कल का स्क्रीनशॉट कल के लिए, या मैं देखता हूँ मेरे पास है कल की जो हमारा प्रोग्राम है उसका, कि कल क्या रहेगा हमारे टॉक का टॉपिक, जो टॉक्स है उनका। या मैं देखता हूँ मेरे पास अगर है। सर मीनवाइल मेरे पास एक क्वेरी है मेरी, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी जी प्लीज पूछिए जी। सर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं ये श्री वैष्णो देवी
मैं इंक्यूबेटर सेंटर में अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके सर। आप TBIC वेबसाइट पे अपना आइडिया डाल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। मुझे लगता है शायद स्वाति का इंटरनेट चला गया है। विकी आर यू अराउंड? आपके पास है क्या सर? अमित जी आपके उस पे है क्या? मैं एक्चुअली फोन से लॉग्ड इन हूँ। हाँ जी, मैं 1 सेकंड निकाल लेता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं शेयर करता हूँ ना। Sir, I'm sharing it. अच्छा विकी यू आर शेयरिंग, ओके। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir, it is visible. हाँ जी, तो ये कल के टॉपिक्स हैं जो हमारे रहेंगे। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा 4 से 4:30 बजे तक है। उसके बाद हम IPR की बात करेंगे 4:30 से 5 बजे तक, और उसके बाद मार्केटिंग टेक्निक पर बात करेंगे हम 5 से 7। ठीक है तो सर। ये 3 टॉपिक रहने वाले हैं। मिस्टर शौर्य गर्ग, सौरभ जैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं कल पेटीएम से। सौरभ त्रिवेदी हमारे कुलीग ज्वाइन कर रहे हैं IPR के ऊपर, और शौर्य गर्ग फंडू वर्क से ज्वाइन कर रहे हैं इसके ऊपर अपना मार्केटिंग टेक्निक। ठीक है सर। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि कल ज्वाइन करें और इसका बेनिफिट लें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। तो सर थैंक यू आज के लिए। सो वी कंक्लूड फॉर्मली द सेशन फॉर टुडे। सर फीडबैक लिंक सर फीडबैक लिंक सर फीडबैक के लिए आप सीधा मेल कर सकते हैं। जिस मेल से आपको आया होगा ना इनविटेशन, आप मेल से अपना फीडबैक दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर। स्वागत सर। जी ओके, थैंक यू Okay, एवरीवन। thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू विवेक, थैंक यू राखी। बाय विवेक जी। Thank you. बाय। Bye, थैंक sir. यू। बाय।